I am Vandana and we are learning computer of class 3 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. So let's start chapter number 7, Internet. So here in this chapter we are going to learn about Internet, and let's move on to the introduction of the chapter. So the Internet is a big network of connected computers. Internet क्या है? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे आपस में कनेक्ट किए जाते हैं एंड इसे ही इंटरनेट कहते हैं. इट इज़ लाइक अ ह्यूज लाइब्रेरी विथ इंफॉर्मेशन. ये एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, पिक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं या फिर गेम्स होते हैं दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम योर कंप्यूटर, फोन एंड टैबलेट, जो हम अपने कंप्यूटर से, फ़ोन से या फिर टैबलेट से एक्सेस कर सकते हैं. Let's move on to the learning objectives. So क्या है learning objectives इस chapter के? Let's see. So after learning this chapter, students will be able to know, इस chapter को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे. You will learn how to connect with the internet. So connecting to the internet is our first topic. You will also learn about web browser. You will learn about internet terminologies. You will learn about using Google Chrome, कैसे हमें Google Chrome को use करना है, and you will also learn about search engine. So ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Let's move on to the conversation between Meera and her friend Hina. तो मीरा और उसके फ्रेंड हिना के बीच में कुछ बातचीत हो रही है. Let's see what they are talking about. So Meera says to her friend Hina that, "Hi Hina, do you ever wonder how we connect to the internet?" क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं? तो हिना कहती है, "Hi मीरा, no I am not really sure how it works. Can you tell me?" तो मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो मीरा ने कहा, "Of course हिना, there are a few ways to connect to the internet." बहुत सारे तरीके हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के. The most common ways are through Wi-Fi and using a cable. जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है वो क्या है? वाईफाई को यूज़ करना या फिर केबल्स को यूज़ करना. Hina says Wi-Fi, like when I use my phone at home. जैसे कि मैं घर पे फ़ोन को यूज़ करती हूँ, वाईफाई की मदद से हमें यहाँ पे काम करना है. तो मीरा ने कहा, yes exactly, हाँ तुम सही कह रही हो. Hina replies that that's right. What about the cable way? ये केबल का तरीका क्या है? Now Meera says the cable way is when you use a special wire. ये जो केबल वे है ये क्या है? ये वो तरीका है जब हम एक स्पेशल वायर को यूज़ करते हैं to connect your device to the internet. हम अपने डिवाइस को इसमें इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं. Now Hina replies, "Thanks Meera, I get it now." हाँ मुझे अच्छे से पता चल गया, अब मैं समझ चुकी हूँ इस चीज़ को. We can connect to the internet with Wi-Fi or a cable. हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई या फिर केबल की मदद से. Now Meera replies, "You are welcome Hina. The internet is full of interesting things to explore." इंटरनेट जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरा हुआ है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है. And knowing how to connect is the first step. और इसे कैसे कनेक्ट करना है ये पहला स्टेप है. Let's explore about the internet. तो चलो इंटरनेट के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं. So now let's move on to the topic. What do you mean by internet? इंटरनेट का क्या मतलब है? Internet is an interconnected network of computers. So इंटरनेट क्या है? ये एक साथ जुड़ा हुआ जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है उसे ही इंटरनेट कहते हैं. It has become the top most requirement of the people. ये आजकल के लोगों का top most requirement हो चुका है. These days people are using internet to do many tasks. आजकल क्या होता है, ये जो लोग हैं इंटरनेट को यूज़ करते हैं बहुत सारे कामों को करने के लिए of their day to day life, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के. So the internet is also known as the global networks. इसलिए इंटरनेट को global networks कहा जाता है. Not just computers and laptops, but smartphones, tablets, smartwatch, Android TV, and many other devices are also connected to the internet.
सिर्फ यही नहीं, सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है स्मार्टफोन्स की, टैबलेट्स की, स्मार्ट वॉचेस की, एंड्रॉयड टीवी की और दूसरे डिवाइसेस की, जो कि क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं इंटरनेट की मदद से। नेक्स्ट, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। सो इंटरनेट प्रोवाइड्स मेनी सर्विसेज। इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है। However, to use these services, you need to be connected to the internet. अगर आपको ये सर्विसेज यूज करनी है तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। Let's move on to various ways of connecting to the internet. कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के? So first comes broadband. So a broadband connection allows us to use internet services that require high speed, such as playing online games और watching online videos. Broadband connection क्या है? ये हमें हेल्प करता है यूज़ करने में इंटरनेट सर्विसेज को, जो कि ज़रूरी है, हाई स्पीड में होनी ये ज़रूरी है। एंड यहाँ पे हम इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, गेम्स को ऑनलाइन खेल सकते हैं या फिर ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वाईफाई। सो द वाईफाई कनेक्शन यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये जो वाईफाई कनेक्शन है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है बैंड्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। तो यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूज किए जाते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। एंड इट ऑफर्स हाई स्पीड एंड कैन बी यूज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ये क्या करता है, हाई स्पीड जो है देता है हमें और इसे हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं, सच एज टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। जैसे कि टैबलेट्स कह लो, स्मार्टफोन्स कह लो। इट इज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन विदाउट यूजिंग वायर्स और केबल्स। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें हम वायर्स और केबल्स को यूज नहीं करते हैं। So now let's move on to the next topic, which is computer system. So the basic requirements for accessing the internet connection, we need computer system. अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। एंड द इंटरनेट कैन बी एक्सेस बाय डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और अ लैपटॉप। और इसी तरीके से जो इंटरनेट है वो हम डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। Let's move on to the modem. So modem is known as modulator demodulator. So ये इसका full form है and it is used to enable a computer system to receive any information by using telephone line. So इसे यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किस लिए, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए टेलीफोन लाइंस की मदद से। It is usually provided by the ISP. इसे जो है ISP प्रोवाइड करता है to distribute the internet signal to the connected devices. We use a router. अगर हमें जो इंटरनेट सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे राउटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज राउटर, दिस इज ए मॉडेम। यहाँ से इंटरनेट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है इन सारी डिवाइसेस में। नेक्स्ट कम्स वेब ब्राउज़र। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है विच हेल्प्स यू विजिट अ वेबसाइट, जो आपको हेल्प करता है वेबसाइट को विजिट करने में। अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इट हेल्प्स टू व्यू द वेब पेजेस। ये आपको वेब पेजेस को व्यू करने में हेल्प करता है, जो भी आपके कंप्यूटर में है, टैबलेट में है या फिर स्मार्टफोन में है। सम पॉपुलर वेब ब्राउजर्स आर, आप कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स दिए गए यहाँ पे, जो कि हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एक्सेट्रा। तो ये कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ उनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड ओपेरा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW भी कहते हैं। सो द वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल्सो नोन एज द वी। इसे हम द वी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस फाउंड ऑन द इंटरनेट। ये एक कलेक्शन है बहुत सारे वेब पेजेस का। अ वेब ब्राउज़र यूजेज द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब। और वेब ब्राउज़र भी क्या करता है, इंटरनेट को यूज़ करता है वेब को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट कम्स वेब पेज। सो वेब पेज क्या है, ये एक सिंगल पेज है वेबसाइट का which consists of text, images, audios, videos, links, animations, etc. So ये जो वेब पेज है ये एक सिंगल पेज होता है हमारे वेबसाइट का, जैसे कि आपकी नोटबुक का जो पेज है सिंगल पेज,
सो ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं जो वेब पेज है ये भी इस पूरे वेबसाइट का एक सिंगल पेज होता है जिसमें आपको टेक्स्ट मिलेगा, इमेजेस मिलेंगे, ऑडियो मिलेगा और फिर वीडियोस मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे, एनिमेशंस मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर आता है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? ये कलेक्शन है रिलेटेड वेब पेजेस का, मीन्स जो साइट हमने खोली उसमें जो भी रिलेटेड पेजेस हैं वो सब वहाँ पे आपको मिलेंगे, दैट आर लिंक टुगेदर, और इन पेजेस को, वेब पेजेस को एक साथ लिंक किया जाता है। यू कैन एक्सेस एनी वेबसाइट विथ द रिस्पेक्टिव वेब एड्रेस। सो यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट को जो है एक्सेस कर सकते हैं दिए गए वेब एड्रेस की मदद से। नेक्स्ट कम्स हाइपरलिंक्स। सो अ हाइपरलिंक आल्सो नोन एज अ लिंक और हाइपरटेक्स्ट। हाइपरलिंक ये एक लिंक होता है या फिर हाइपरटेक्स्ट होता है, एंड इट इज एन एलिमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एक एलिमेंट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दैट कनेक्ट वन डॉक्यूमेंट टू अनदर, जो क्या करता है एक डॉक्यूमेंट को दूसरे से कनेक्ट करता है ऑन द इंटरनेट पे। इट अलाउज यू टू नेविगेट फ्रॉम पेज टू पेज विद अ सिंगल क्लिक। ये आपको हेल्प करता है नेविगेट करने में पेज से पेज एक ही क्लिक में। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूजिंग गूगल क्रोम। कैसे हम गूगल क्रोम को यूज कर सकते हैं, दिस वी आर गोइंग टू लर्न हियर। सो गूगल क्रोम इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर्स। गूगल क्रोम जो है सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला वेब ब्राउजर है, एंड द फॉलोइंग विंडो अपीयर्स व्हेन यू डबल क्लिक गूगल क्रोम। जैसे हम गूगल क्रोम को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं उस पर, तो क्या होता है ये जो विंडो है आपके सामने ये खुल जाता है, एंड टाइप द गिवन URL। सो हमें ये जो URL दिया गया है इसे हमें यहाँ पे टाइप करना होता है। सो वेब ब्राउजर में हम ये URL टाइप करेंगे, और क्या है ये URL? ये है www.google.co.in। सो ये हमें टाइप करना है। Now let's move on to the parts of Google Chrome window। Google Chrome window के कौन कौन से parts होते हैं, तो we have to see that, let us have a look at some of the parts of Google Chrome window। यहाँ पे कुछ parts दिए गए हैं Google Chrome window के, let's see what are they। So सबसे पहला जो ये बटन है ये है हमारा बैक बटन, ऐसा दिखता है ये। फिर आता है आपका फॉरवर्ड बटन जो आगे नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जाएगा। फिर आता है आपका रीलोड बटन जिससे आप उस पेज को फिर से रीलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका होम बटन जो आपको होम पे ले जाएगा। फिर ये आपको जो दिख रहा है दिस इज न्यू टैब, यहाँ से आप नया टैब ऐड कर सकते हैं। ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है दिस इज योर एड्रेस बार, यहाँ पे हम एड्रेस टाइप करेंगे कोई भी। ये जो चीज़ हमने यहाँ पर टाइप किया है ना URL, ये हम यहाँ पे इस वाइट एरिया में टाइप कर सकते हैं। फिर आता है बुक मार्क दिस टैब, ये जो स्टार साइन बन रहा है इससे हम उस टैब को बुकमार्क कर सकते हैं, मीन्स वो पेज वहीं पे सेव हो जाएगा। सो ये थे कुछ पार्ट्स गूगल क्रोम विंडो के। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द बैक बटन। बैक बटन किस काम आता है? सो टू गो बैक टू द प्रीवियस वेब पेज, अगर आपको पिछले पेज पे जाना है तो आपको ये बैक बटन यूज करना होगा जिस पे हम पहले जा चुके, जो हम प्रीवियसली हमारी विजिटेड जो पेज है उस पर हम जा सकते हैं इस बटन की मदद से। फिर आता है फॉरवर्ड बटन, to go to the page you visited before pressing the back button। so forward button हमें उस पेज पे ले जाता है जहाँ पे हम पहले थे बैक बटन को प्रेस करने के पहले। so the forward button is used, तो उस समय हम क्या करते हैं फॉरवर्ड बटन को यूज करते हैं। फिर ये जो रीलोड बटन है तो क्या होता है इसमें, so some web pages contain information, कुछ जो वेब पेजेस है उसमें जो है इंफॉर्मेशन होती है दैट इज अपडेटेड वेरी फ्रिक्वेंटली, जो बहुत ही जल्दी फ्रिक्वेंटली क्या हो जाता है अपडेट हो जाता है। द रीलोड बटन इज यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज। ये जो रीलोड बटन है इसे यूज किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए वेब पेज को, टू डिस्प्ले द अपडेटेड वेब पेज, ताकि वो जो अपडेटेड वेब पेज है वो वहाँ पे दिखाई दे। एंड अलाउज यू टू व्यू द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेज, और उस पेज में अगर कोई भी अपडेट हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे शो होने लगती है। नेक्स्ट कम्स stop button। so the reload button turns into a stop button while a web page is being loaded। जैसे ही वेब पेज जो है लोड होने लगता है तो क्या होता है ये जो reload बटन है वो stop बटन में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। and if a page is taking too long to load or open, अगर किसी पेज को लोड होने में ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्टॉप बटन को यूज़ कर सकते हैं टू कैंसिल द वेब पेज फ्रॉम लोडिंग, ताकि उस वेब पेज को लोड होने से हम रोक सकें। नेक्स्ट कम्स
न्यू टैब. सो टू ओपन अनदर वेब पेज इन अ न्यू टैब. सो अगर हमें एक नया वेब पेज खोलना है नए टैब में इन द सेम ब्राउजर विंडो, उसी ब्राउजर विंडो में, तो हमें क्या करना होगा, द न्यू टैब बटन इज यूज. यहाँ पे जो न्यू टैब बटन है उसे यूज किया जाता है. नेक्स्ट कम्स द एड्रेस बार. सो द प्लेस is where the web address or the URL of the web page is typed. ये वो जगह है जहाँ पे वेब एड्रेस या फिर URL उस वेब पेज का टाइप किया जाता है जिसे हम एड्रेस बार कहते हैं. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है ये है हमारा एड्रेस बार. Let's move on to know the fact. So the name Google was a misspelling of the word Google. सो ये जो वर्ड है इसका एक मिस स्पेलिंग था, मीन्स ये गलत स्पेलिंग थी. एंड गूगल इज अ नेम गिवन टू अ नंबर दैट स्टार्ट्स विथ 1. सो ये जो गूगल है ये एक नाम है जो दिया गया है एक ऐसे नंबर को जो 1 से शुरू होता है एंड इज फॉलोड बाय 100 जीरोज, और उसके बाद 100 जीरोज लगे हुए हैं. सो ये क्या है, एक रॉन्ग स्पेलिंग है उस वर्ड की जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है गूगल. नेक्स्ट, बुकमार्क दिस टैब. सो टू सेव द एड्रेसेस ऑफ द वेब पेजेस. अगर आपको जो भी एड्रेस आपने डाला है वेब पेज में उसे सेव करना है, सो व्हाट वी डू, वी ऐसे पेजेस जिसको हम फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, ऐसे पेजेस को सेव करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं, बुकमार्क ऑप्शन को. सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बुक मार्क कर देते हैं और ये एक स्टार की तरह दिखाई देता है. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स. सो वेब लिंक इज अ वर्ड और फ्रेज ऑन अ वेब पेज. वेब लिंक क्या है, ये एक वर्ड है या फिर फ्रेज है कहाँ पे, वेब पेज पे, दैट व्हेन क्लिक्ड विल टेक यू टू अनदर वेब पेज. लिंक टू इट, जिस पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमें दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा जो उससे लिंक है. इट यूजुअली अपीयर्स इन ब्लू, ये जो है ज़्यादातर ब्लू कलर का दिखाई देता है, एंड इज अंडरलाइन, और ये अंडरलाइन है. द कर्सर विल टर्न इनटू अ हैंड सिंबल व्हेन यू पॉइंट टू अ वेब लिंक. ये जो कर्सर है ये कहाँ चला जाएगा, एक हैंड सिंबल में क्लिक हो जाएगा, हैंड सिंबल में टर्न हो जाएगा जब हम इस वेब लिंक पे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेब लिंक, क्लिक ऑन मी. तो ये लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर जब आप करोगे तो एक हैंड सिंबल बना हुआ आ जाएगा एंड वो शो करेगा कि आपको इस पे क्लिक करना है. नेक्स्ट, यूजिंग सर्च इंजिन्स. कैसे हम सर्च इंजिन्स को यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट कम्स द सर्च इंजिन इटसेल्फ, a special type of website that helps you search for web pages based on keywords that you type is called search engine. So ये सर्च इंजन क्या है, ये स्पेशल तरीके की वेबसाइट है जो हमें हेल्प करती है सर्च करने में वेब पेजेस को, जो भी हमने यहाँ पे कीवर्ड्स टाइप की है उससे रिलेटेड, और ऐसे ही वेबसाइट को हम सर्च इंजन कहते हैं. सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सर्च इंजन्स, हजारों सर्च इंजन्स आपको मिलेंगे जो कि आपको इंटरनेट पे दिखते हैं. आस्क, याहू, गूगल एंड बिंग आर सम कॉमनली यूज सर्च इंजन्स. तो ये कुछ कॉमनली यूज किए जाने वाले सर्च इंजन्स हैं जो हमें यहाँ पे दिखते हैं. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर्स आल्सो, गूगल, बिंग, याहू एंड आस्क. नेक्स्ट कम्स यूजिंग द गूगल सर्च इंजन. कैसे हम गूगल सर्च इंजन को यूज कर सकते हैं. सो टू परफॉर्म अ सर्च, अगर हमें किसी चीज़ को सर्च करना है तो हमें जो है नेविगेट करना होगा, उस सर्च इंजन में जाना होगा जो कि हमारे वेब ब्राउजर पे है. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑन सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन. हमें चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल सर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन. यहाँ पे कहाँ पे, स्मार्टफोन पे हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हम गूगल सर्च को यूज़ करेंगे. ये हमारा जो सर्च इंजन है इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स. सो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए कैसे हम गूगल सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं. तो पहला स्टेप कहता है, फर्स्ट यू हैव टू टाइप द URL ऑफ द गूगल सर्च. जो URL है हमारे गूगल सर्च का उसे पहले हमें टाइप करना है एंड इन द एड्रेस बार आपको ये लिखना है. सो हम लिखेंगे www.google.co.in. सो ये रहा हमारा एड्रेस बार, यहाँ पे हमने लिख दिया. अब जैसे हमने लिखा तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है गूगल की मेन होम पेज आप कह सकते हो उसे, ये हमारे सामने आ जाएगा. नेक्स्ट
After that, a search text box gets displayed in which you type the keywords related to the information you want to search box. So यहाँ पे एक जो है बॉक्स दिखेगा जिसमें हम वो वर्ड्स लिख सकते हैं जो हम सर्च करना चाहते हैं. So in last you have to type the text in the search box. So यहाँ पे जो हमें जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो है जो भी कंटेंट है जो भी टेक्स्ट है उसे टाइप कर देना है. You will see a list of relevant websites. उससे रिलेटेड जो है बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी. That match your search term, जो हमारे सर्च किए गए टर्म से मैच करता है. These are known as search results. इन्हें हम search results कहते हैं. And you can click on a link to open it for further information. हम क्या कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक कर सकते हैं इसे जो है further information के लिए ओपन करने के लिए. Let's move on to tech tips. So while searching online, you can use longer phrases to get accurate search result. So जब हम जो है सर्च कर रहे होते हैं ऑनलाइन, हमें जो है लंबे फ्रेजेस की ज़रूरत होती है ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट पा सकें. So यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे गूगल को यूज़ किया है. गूगल की स्क्रीन है, ये जो सर्च बॉक्स है इसमें हम जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड फिर उससे रिलेटेड वेबसाइट्स हमें दिखने लगेंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेफ्टी रूल्स व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट. कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए जब हम इंटरनेट को ब्राउज कर रहे होते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट. इंटरनेट को यूज़ करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए. वी शुड नो अबाउट गुड एंड बैड थिंग्स दैट मे अपीयर इन द वेब ब्राउजर. हमें अच्छी और बुरी चीज़ें, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए. It is very important for everyone to be safe while browsing. सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या करें, सेफ रहें जब वो ब्राउज कर रहे होते हैं. Let's move on to tech tips. So web pages contain highlighted text or images that connect to other pages on the web. वेब पेजेस जो हैं इसमें आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगे जो क्या करता है, कनेक्ट करता है इन पेजेस को वेब पे. And these are called hyperlinks. इन्हें hyperlinks कहते हैं. So let's go through some of the guidelines for being safe while browsing the internet. तो चलिए कुछ necessary tips को देखते हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा जब हम ब्राउज कर रहे होते हैं इंटरनेट को. So सबसे पहला जो स्टेप है वो है while browsing never click on a link that flashes in between. जब आप ब्राउज कर रहे हो तो कभी भी किसी लिंक पे क्लिक ना करें जो between means बीच में आ जाए. Clicking on these links may install harmful programs on your computer. अगर आप इन लिंक्स पे क्लिक करें तो हार्मफुल प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे आ सकते हैं. नेक्स्ट, यूज ओनली दोज वेबसाइट्स दैट आर मेंट फॉर यू. सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को यूज़ करें जो आपके लिए बनी हैं. सम साइट्स आर नॉट सुटेबल फॉर यू. कुछ साइट्स ऐसी हैं जो हमारे लिए सुटेबल नहीं हैं. डू नॉट विजिट दोज वेबसाइट्स. उन वेबसाइट्स पे बिल्कुल ना जाएं. नेक्स्ट, ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ नॉट ट्रू और करेक्ट. जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है वो सारी सही नहीं होती है. सो डोंट बिलीव इट. उस पर विश्वास ना करें. नेक्स्ट, बी अलर्ट टू अनयूजुअल ऑनलाइन बिहेवियर. सो कई बार क्या होता है, अनयूजुअल बिहेवियर हमें ऑनलाइन मिलता है. एंड डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट. और कभी भी स्ट्रेंजर्स पे विश्वास नहीं करें जब आप इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हो. नेक्स्ट, लुक एट द 3 letters एट द एंड ऑफ द वेबसाइट. वेबसाइट के लास्ट में जो 3 letters हैं उन पे ज़रूर ध्यान दें. सच एज एड्यू फॉर एजुकेशनल, GOV फॉर गवर्नमेंट, ORG फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड COM फॉर कमर्शियल. जनरली .edu एंड .gov वेबसाइट्स आर ट्रस्टवर्दी. ये जो वेबसाइट्स हैं जो एजुकेशन एंड गवर्नमेंट की है ये ट्रस्टवर्दी होती हैं. So this was the chapter. Now let's move on to reboot. So you can search for this information anywhere. आप इस information को कहीं भी search कर सकते हैं at any time using a computer or other devices connected to the internet. So internet की मदद से हम किसी भी चीज़ को कहीं भी बैठ कर search कर सकते हैं. अब next point क्या है, broadband connection. ये हमें हेल्प करता है इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करने में जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है. जैसे कि हमें गेम्स खेलने में या फिर ऑनलाइन वीडियोस देखने में इंटरनेट की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, टू गेट रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट.
जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं उसे पाने के लिए हमें जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है वाईफाई की मदद से। मॉडेम enables a computer system to send or receive information। मॉडेम की मदद से हम रिसीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को या फिर सेंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को टेलीफोन लाइंस की मदद से। A company that offers connectivity to the internet by changing a fee is called IPS, and a collection of related web pages is known as a website. Web pages contain highlighted text or images that connect to other pages on the web. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's go. So here A exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. So the first one is it is important to get careful while using the internet. Second, our web page is a single page in our website which consists of text, images, audio, videos, links, animations, etc. Third one, a hyperlink also known as a link or hypertext. Fourth, modem is known as modulator, demodulator. Fifth one is internet is an interconnected network of computer networks. Now let's quickly move on to B exercise, which is write T for true and F for false. Now let's move on to B exercise, which is write T for true and F for false. So here the first one is a website is a collection of related web pages what are linked together. Yes, true. Second, the World Wide Web is also known as the we. Yes, true. Third, the basic requirements for accessing the internet connection, we need computer system. True. Fourth, the internet is also known as a global network. Yes, true. And the fifth one, it is not important to be careful while using the internet. So this one is false. Next comes exercise C. Take the right answer. So here the first one is, it is not a search engine. Google, Bing, Facebook, Yahoo. Facebook is the correct answer. Second, it is a web browser. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, all of the above. So all of the above is the correct answer. Third, it enables a computer system to send or receive information. Wi-Fi, Internet, broadband, browser. Internet is the correct answer. Now the fourth one is, it connects to another page on a website. Hyperlink, www, web page, none of these. So here the correct answer is hyperlink. Now let's move on to the exercise, which is write the name of icons of the web browser and write their uses. So here we are going to write down the name of these and you have to write down the uses. So I am just going to write down their names. So first one is bookmark. You have to write down the use also. Next is forward button. Next you can see, next is new tab. Back button. And the fifth one is reload button. So till here we have completed the book exercise. The rest of the exercises you have to do yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then stay tuned and thanks for watching.